not 15th, because 15th is a holiday. You had a 40? What is that? Sir, we had the function on 14th. What is that function 40? Sir, for Independence Day, we had it on 14th of August. Oh, 14th only. Yes, sir. अच्छा 15 को छुट्टी. Yes, sir. Okay, is it allowed? No, I don't think so. What, sir? Is it allowed to celebrate one day in advance? Sir, I don't know. We did that because on 15th it's a holiday, so we can't go school that day. Oh, that's very interesting, actually. क्योंकि 14th को क्या है कि पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है. Yes, sir. Interesting. Hello, where are other friends of yours? And Pankaj ji, how is but today? I didn't get time. How is Amarnath ji? Good evening, sir. Good evening, Earth. How are you? I'm fine, sir. How about you? I'm fine. How is it? Do you have some latest information about Amarnath ji? Yes, sir. He has been discharged from the hospital. Okay, Now he he's back. is at home, but he's not well till now. He will take, I think, BP. BP is not stable. It is sometimes low and high. Hmm. Sure. Okay, I'll be talking to in the evening today. Yes. What is BP, Earth? Do you know what is Uh, BP? What is BP? पापा BP कितने तक जाता है? 40-45. No. What is the meaning of BP? Blood pressure. Blood pressure. What is that blood pressure? Uh, when if we take too much tension or pressure, then our BP is high. But what is that pressure? What do you mean by pressure there? So when we take too much pressure, our heart also take too much pressure. That's why our BP is high. Acha, but if we don't have tension, then there is no pressure, is it? Yes, and that time the heart work normally. Normally, but does it? Is there still pressure there? Yeah, what sir? And even in a normal person, there is a blood pressure in the blood. Uh, What is the meaning mm, of blood pressure actually, and why so we when need it? Why we need it? so that's not sir, not no. Hmm. Aryan, do you know why we need blood pressure? The blood pressure is the pressure of blood. Hmm. So why we need it? Sir, it shows that how much pressure the heart takes taking to generate the blood. No. Generate the blood. Blood तो कहीं और generate होता है. हार्ट में थोड़ी blood generate होता है. Blood is generated somewhere else and put into the heart. Mm. So, Earth, Aryan, do you have some idea why we need blood pressure? Sir, it's the pressure at which the blood is going in the blood, in the body. That is true, but why we need pressure actually? Sir, Sir, can I say? with its pressure is the force applied per unit area. So it defines how fast, like
at what pressure, at what force that was applied. The blood was applied, like the force applied on the blood. So that is why it's called pressure. And who is Can I applying try? that? Yeah. I'll give you the chance. Just wait 1 minute. I'm just asking Aryan. So, who is applying that pressure actually? So the heart. Yeah, correct. So, heart is basically a pump. But Yes, my question was that why do we need a pump in our body? sir. Or because the blood will just, because of gravity, it will be just in our legs. Yeah, that is true. If there is no, so all the blood will remain there. But we need to pump the blood to our brain also. Yes, sir. The brain, you'll be surprised that the tigers, their heart and the brain, they are almost at the same level. All these four-legged animals. So they don't need much pressure actually. But we human beings, जब से ये खड़ा होकर के चलना चालू किया, so you see the pressure immediately, the requirement increases because the blood has to be pumped to the brain. आप जब सोए रहते हैं तो सेम लेवल में रहता है हार्ट और दिस वन, सो थोड़ा सा प्रेशर जो है रिलैक्स रहता है जरा सा. फिर जो ही आप उठते हैं देन पंप इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेस एंड स्टार्ट्स पंपिंग विथ हायर प्रेशर. तभी तो ऊपर जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी तो नीचे ले जाने का प्रयास करता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स? फर्स्ट लेट अस गिव चांस टू अर्थ. हेलो अर्थ. Hello. Yeah, they say that in our body we have artery, we have veins, we have capillaries. What are these? What, sir? In our body we have artery. They call it artery, Yes, sir. and they call it veins, Yes, sir. and they call capillaries. Sir, I can difference between arteries and vein, but I cannot that what you have said right now. Capillary. Yes, a capillary. So what's the difference between artery and veins? The arteries, I think, arteries carry blood away from the heart, Yes, yes, and the very good. veins carry the blood back to the heart. Yeah, okay. And in between them, between the artery and the veins are the capillaries. पतले पतले होते हैं जो उसको शिफ्ट करते हैं ब्लड को, जो है ना, सारे बॉडी में पहुंचा करके, एंड देन ट्रांजिशन होता है टू वेन्स कि अब ऊपर जाना है हार्ट के पास. दैट इज डन थ्रू कैपिलरीज. इन आवर बॉडी वी Like हैव हार्ट. sir, like capillaries connect arteries and veins. या दे कनेक्ट द आर्टरी एंड द वेन्स. So what is their work? या वो पतले पतले से होते हैं. सो यू मेक द ट्रांसफर. जो आर्टरी वाला ब्लड जो है ना, So गया like a और फिर, transfer of या oxygen and food. हाँ, ऑक्सीजन ट्रांसफर किया, इवन न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर किया सेल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फिर बैक वो ब्लड को थ्रू कैपिलरीज वेन्स में डाल देता है. फिर वेन्स उसको ले जाते हैं हार्ट. Okay. या वेन्स हार्ट में ले जाते हैं. हार्ट फिर क्या करता है, उसको लंग्स में पहुंचा देता है. वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देता है और ऑक्सीजन ले लेता है. फिर बैक टू आता है हार्ट में. हार्ट फिर उसको पंप करता है जोर से, एंड देन इट गोज. सो व्हाट ए नाइस मैकेनिज्म गॉड हैज मेड. आपके बिना सोचे जिंदगी भर चलता रहता है. तो इसी में जो है, आप गलत खाना खाएंगे. आप लोग ठीक से खाना खाते हैं ना? गलत खाना खाएंगे तो क्या होता है, आर्टरी में जो है जम जाता है, तो आर्टरी जो है नैरो हो जाता है. तो Yes sir, जब ऑयल जब ज्यादा खाते हैं ना हम लोग ऑयली फूड, तब आर्टरी में ऑयल जम जाता है, तो जब ब्लड उसमें से निकलता है तो ब्लड पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है निकालने के लिए. हम्म
जैसे हम लोग जब पाइप का थोड़ा-सा हिस्सा दबा देते हैं तो पाइप में से एकदम पाइप में से पानी एकदम तेज़ निकलता है, वैसे ही ब्लड में भी होता है। अच्छा। वेरी गुड। नहीं, पर मेन प्रॉब्लम होता है कि आर्टरी जो है ना, धीरे-धीरे उसका डायमीटर कम हो जाता है। तो डायमीटर कम होता है तो बॉडी सोचता है कि अरे पंप कैसे करेंगे? प्रेशर बढ़ाना पड़ता है उसको। तो लोग कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। और हाई ब्लड प्रेशर होने से प्रॉब्लम क्या है कि आर्टरी का जो वॉल जो होता है यदि कमज़ोर हो गया और नो तो फट जाता है। सर इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग वही जो उसमें से तो खून निकल जाएगा ना। हुँ। इंटरनल ब्लीडिंग गिरने से भी हो सकता है सर? कभी भी हो सकता है, जैसे कभी ना, हाँ, कहीं कभी पे भी। चोट लग गया वहाँ बिना किसी कारण के भी? बिना किसी कारण के भी यदि आपका आर्टरी कहीं पर उसका वॉल जो है कमज़ोर है, तो हाई प्रेशर होने से जो है ना वो जो वॉल जो है उसका आर्टरी का वॉल नहीं ले पाता है तो फट जाता है। So बड़ा ओके सर। सिंपल वे से देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिक्स इनसाइड इट इन आवर बॉडी। देखिए नेचर को सब चीज़ पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। हम लोग जो है सो ह्यूमन बीइंग्स जो है खोज-खोज के निकालते हैं हम लोग। नेचर को तो सब कुछ पता है। सो इंटरेस्टिंग इट इज़। हाँ, अब आर्यन आप कुछ पूछ रहे थे? No, sir. Can you imagine, Aryan, how much physics is there in our body? So interesting it is. Yes, sir. Even the heart का pumping जो है ना, it is done by the electrostatic charges. Have you heard about it? No, sir. चार्ज के कारण जो है ना, ये तो पंपिंग कैसे करेगा? जैसे बेलून में जैसे हवा आप भरते हैं तो उसको यदि प्रेस करते हैं, फिर खोलते हैं तो प्रेशर कम बेसी होता रहता है। वही तो हार्ट भी करता है, पर वैसा क्यों करता है? यानी इट डज रिदमिकली एकदम से। अभी-अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक दोस्त को क्या हो गया, तो उसका हार्ट जो है ना, वो पंप करता था बट द रिदम वाज़ नॉट गुड। तो सडनली जो है ना वो उसका वो गिर गया वो। यही 4-5 दिन पहले की बात है। फिर 2 मिनट के बाद उसको होश आया, उसका हार्ट फिर ठीक हो गया। पर डॉक्टर के पास गया तो बोला कि आपका रिदम जो है सो गड़बड़ हो गया था। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिदम ऑफ हार्ट? रिदम माने अब ये 15 सेकंड में इतना बार पंप करेगा। पर कई जब कुछ किसी टाइप का बीमारी होता है किसी कारण भी तो क्या होता है कि गैप हो जाता है, बहुत बड़ा गैप, या बहुत फास्ट हो गया या बहुत गैप हो गया तो तब मुश्किल होता है तब। और हार्ट वैसे इन जनरल नॉर्मल जब तक आदमी जिंदा रहता है एकदम रिदम से चलता रहता है, वो एकदम से कॉन्स्टेंटली। तो अमरनाथ जी का भी जो है सो Amarnath ji, some of the arteries they got blocked. So God has given in our heart spare arteries. So what the doctor has done, the spare artery को use करके वो bypass कर दिया। नहीं, आप नहीं सुनते हैं शहर वगैरह में जो होता है बहुत अंदर में ट्रैफिक जाम होने लगता है तो रोड को बाहर से एक ठो निकालता है जिससे यस ट्रैफिक सर। उधर से चला जाए। सेम चीज जो है ना डॉक्टर भी करता है। Luckily, God has given us spare arteries in our heart. तो उसको यूज करके बाईपास कर दिया जाता है। जहाँ पर जाम हो गया है तो उसमें अब तो जाएगा ही नहीं, तो उसको क्या करेंगे आप? तो उसको पैरेलल में एक ठो निकाल करके जोड़ देता है।
See, all the great things which have happened in the biology in our this thing, but much of it is, a lot of, these heart machine, lung machine, these are all contributions of engineers and physicists. And of course, chemistry people, you see. इतना जो revolution हुआ है हमारे body को किस तरह किया जाए. You see, heart lung machine. There was a doctor in 1950s. आप लोग बाद में पढ़ेंगे क्या हुआ तो उसका हार्ट जो है सो उसका वाल्व जो है ठीक नहीं था. तो हार्ट को अब क्या करेगा तो क्या किया टेम्पररी जो है उस समय हार्ट लंग मशीन नहीं था. वो क्या किया एक माने टेम्पररी जो है ना हार्ट के ब्लड को एक पिग के हार्ट के थ्रू से पास करवाया. पिग समझते हैं ना सुअर जो होता है. यस सर। उस समय हार्ट लंग मशीन नहीं था. हम फिर 1950s की बात कर रहे हैं. उसी समय हार्ट लंग इजाद मशीन हुआ. क्या होता है? हार्ट लंग मशीन यह होता है कि जब हार्ट में ऑपरेशन होता है जैसे वाल्व को रिपेयर करना है तो उसमें तो लगेगा आधा घंटा 15 मिनट लगेगा जो भी. तो आधा घंटा तो हार्ट को आप रोक नहीं सकते हैं ना. काम तो करते रहना चाहिए. तो ये अच्छा। हार्ट लंग मशीन जो है ना जब नहीं था तो वो डॉक्टर लोग क्या करते थे हार्ट को ब्लड जो है ना डाइवर्ट कर देते थे टू द पिग्स हार्ट. तो पिग का हार्ट यूज करके बॉडी में पंपिंग होता था. जब हार्ट लंग मशीन आ गया तो क्या करते हैं अब मशीन से थ्रू से होता है. क्योंकि डॉक्टर को तो चाहिए ना वाल्व में मान लीजिए कोई डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करना है. तो रिपेयर कैसे करेंगे जब तक हार्ट को आप जो है सो उसको ये रिपेयर कर माने रोकेंगे नहीं थोड़ा देर के लिए. पर आप रोकेंगे एक एक मिनट के लिए भी रोकेंगे तो आदमी तो मर जाएगा. मर जाएगा ना. यस सर। So it is so interesting, these lot of contributions from physics, chemistry people, engineers to our body, how to keep our body healthy, safe. कितने सारे मशीन आ गए हैं. अब देखिए कितने तरह के मशीन यूज होते हैं. You'll be surprised. All done by the engineers and physicists. Biophysics is a very interesting subject. In fact, a challenging subject, one of the challenging subject. People are trying to understand the working of the brain, working of many things. Still, we don't understand. People are trying it. आप लोग बड़े होकर के ये सब में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो what I learned is that अमरनाथ जी का हार्ट was in a good condition. Only ब्लॉकेज था तो स्पेयर आर्टरी को यूज करके विच गॉड हैज गिवन अस तो उनके हार्ट को ठीक कर दिया गया. नाउ ही विल बिकम परफेक्टली नॉर्मल. ही कैन लीड ए वेरी नॉर्मल लाइफ. लेट अस होप दैट ही रिकवर्स फास्ट. चलिए अब आप लोगों का क्वेश्चन लेते हैं. हु वांट्स टू आस्क. हेलो. हेलो. नो सर। No doubts. Very good. Yeah, gradually as they read more and more, then more and more doubts will come. Aryan, you want to ask any question today? Or you want to answer questions? Add a question. You don't have any question? No, sir, I have a question. Oh, what is that question? So, sir, in the old times, how did people used to measure the weight of atomic things? वही नहीं ओल्ड टाइम्स में तो एटम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो मेजर कैसे करेंगे.
Like By sir, old, what do you mean? How many years old? like sir, around the time of Ernest Rutherford, Around? like 100 years ago, 160. 100 years. Yes sir. देखिए एक see there are one or two things. एक तो है कि कितना मास होगा आप खुद ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. एक जो हमने लास्ट टाइम बताया आपको कि एक गिलास पानी है, and if I know how many molecules are there and I know the mass of the total thing, then I can calculate what is the mass of each molecule. Sir, but how did they know that? Like, how did they measure the weight of things like protons and neutrons? Acha, now the protons and the neutrons, this is one thing. Today you don't have to know very high physics. You can measure, say, what is in a glass of water, what will be its mass, if you know how many molecules are there. But in class 7, have they taught Avogadro number? No, sir. Avogadro number, no, it's not, not in 7, in class 9 it is there. Like, sir, I'm in 8 right now. Have you, you're in 8, they haven't taught Avogadro number, no? No, sir. What is an Avogadro number? Sir, 6 times 10 raised to the 23. What is that? Sir, I don't know. It is the number of particles that form 1 gram or something. Yeah, with any molecule, and let's say H2O. So there are two protons and oxygen. So there are in total 16 plus 2, 18 nucleons. Okay, sir. है ना? तो 18 न्यूक्लियॉन्स यदि हुआ तो यदि 18 ग्राम हम लेंगे, suppose I take 18 gram of water, Yes. then उसमें the number of molecules will be Avogadro number. Okay, sir. Sir, but how do we derive this? How do we know these particles? How do we know that these things? Achha, this is one way. This is one way. Miss, roughly, you can estimate any time how much will be the mass of each molecule. And now the other is the magnetic force. Now, in a magnet, when a charged particle moves, the force is equal to mv square by r. So if you know the radius and if you know the velocity, so you know the mass also, because you know the magnetic field also. So in a magnetic field, what happens when a charged particle moves in a magnetic field? Then because of the magnetic force, which is equal to charge into velocity into magnetic field, Okay, is the sir, but force applied on that. how do we get that number? How did we get that number? Yeah. So now, if you know what is the radius in this one, what are the things? You have to know from prior to QB is equal to mv square by r. है ना? तो इसमें quantity क्या है? V I know that is the magnetic field I am applying. All I have to know is the radius and the velocity. So I know what is the mass. So this is another way. आप लोग देखते सुने होंगे कि पहले जमाने में क्या होता था, क्लाउड चेंबर होता था.
क्लाउड चेम्बर लोग बनाते थे। इंडिया में तो बहुत सारा रिसर्च जो लोग करते थे तो क्लाउड चेम्बर से करते थे। तो क्या होगा, कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल उसमें जाता था तो एक ट्रेजेक्टरी बनता था। उस ट्रेजेक्टरी से क्लाउड चेम्बर क्या है कि यदि एक चार्ज पार्टिकल जाएगा देन उसका जो है ना, इट विल इंटरेक्ट एंड इट विल क्रिएट एक प्रकार से जो उसका पाथ जो है ना दिखाई पड़ेगा। उस पाथ से you used to calculate कि ये क्या चार्ज है, whether it is if it is not a charged particle it will just go straight. If it is a positively charged particle it will bend in one direction. If it is a negatively charged particle it will bend in the other direction, and the radius will depend on what is the mass of it. So they used to calculate that way. बहुत सारे पार्टिकल जो कैलकुलेट किए गए हैं शुरू में, ये क्लाउड चेम्बर से किए गए हैं। I'm telling in a very simple way. This is a very simple way. When people do it, there are many complications in that. So, yeah, what are the yes? So, yeah, these are the waves. These are the waves. Basically, it is a magnetic field. Magnetic field में trajectory से you can find out the mass. Hello. नमस्ते। मैं सोचा आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मैं सोचा आज इंडिपेंडेंस डे है तो लोग Yes, बच्चे Sunday ji, पढ़ते होंगे। welcome. ओ थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। Yes, happy independence to you too. तो आप लोग वहां पर मना रहे हैं कि नहीं? हम मना रहे हैं यहाँ पे इस बार, तो मतलब कि बॉस्टन में भी कॉन्सुलेट खुल गया है तो यहाँ भी मना रहे हैं बॉस्टन में भी। लेकिन हाँ, हम लोग वहाँ गए नहीं है क्योंकि वो दूर है यहाँ से। तो एक चीज मेरे मन में उठता है कि आप लोग तो अमेरिकन सिटीजन हो गए हैं, तो आप नहीं लोग नहीं जाकर के, अच्छा आप नहीं हुए हैं, क्यों? ना ना, मैं तो ना हुआ हूँ ना होऊंगा। ओ इज इट? अच्छा, हाँ हाँ, ओ तो यू आर ओनली ऑन द ग्रीन कार्ड ओनली, इज इट? नहीं आई एम नॉट ए ग्रीन कार्ड। अच्छा, H1B पे H1, ही है ना? हाँ हाँ हाँ, ग्रीन कार्ड का वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट 150-200 साल का है अभी। हाँ, सिर्फ सावा को मिलेगा ग्रीन कार्ड अब। अच्छा अच्छा, नहीं, तब आज तो ये मैं अपने मन से, ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। यूएस का एक कानून बदलते समय ये जो आदमी कानून बदल, यहाँ पे ना कोई भी आदमी बिल लेके आ सकता है और जो लेके आता है उसी के नाम पे रहता है। तो यहाँ का सेनेटर माइक ली ने 2019 के सेनेट के स्पीच में, 19 और 20 में सेनेट के स्पीच में बोला था, और जिस डॉक्यूमेंट को उसने कोट किया था वो यूएस कांग्रेशियल स्टडी था। मतलब कि कांग्रेस, मतलब यूएस इसलिए कि इंडियन पार्लियामेंट का कोई स्टडी है जो पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया है, उसी डॉक्यूमेंट को कोट करके उसने अपने मन से गढ़ा हुआ नहीं बोल रहा हूँ, ये फिगर उधर का है और उसने 200 साल बोला है। मैं तो फिर भी अपने हिसाब से 150 कह रहा हूँ, थोड़ा बता दे रहा हूँ। और वो भी 200 साल उनके लिए जिन्होंने 2020 में अप्लाई किया है, और 2030 में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 450 साल, 438 ऐसे कुछ है। ओ माय Because गॉड, it's having, it is having a cascading effect ना। एक साल में इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं जितने उनको मिलने में 10 साल लगेगा, तो हर साल 10 साल और भागता जाएगा, साल 15 साल 20 साल भागेगा। और इसके लिए, इसके पीछे एक कानून है जो 1965 में बना था। उसके हिसाब से जितने लोग नेपाल वाले को जितना ग्रीन कार्ड मिलेगा, जितना मालदीव्स वाले को मिलेगा, भूटान वाले को मिलेगा, उतना इंडिया वाले को भी मिलेगा। तो कोटा सबका बराबर है। माने नंबर इज सेम फॉर ऑल कंट्रीज? दैट्स करेक्ट। नो कंट्री कैन एक्सीड 7% ऑफ द टोटल लिमिट। 7% ऑफ दी 1,40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड मिलता है, उसमें फैमिली अच्छा, मेंबर भी इंक्लूडेड है। तो किसी ओहो, भी कंट्री को 7% से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1,40,000 का 7% होता है 10,000। 10,000 में
फैमिली मेंबर भी लगा लेते हैं, तो उसमें से लेट्स अज्यूम कि 3 का फैमिली ले लेते हैं, तो एवरेज एक ही बच्चा लेता हूँ, तो भी 10,000 में से अगर 3 से डिवाइड कर दो तो मुश्किल से 1 साल में 3,000 साढ़े 3,000 लोगों को ईबी मतलब ग्रीन कार्ड मिलेगा। टोटल ओह, 10,000 होगा, लेकिन 10 में 1,000 में से 5-6,000 तो उनकी फैमिली मेंबर्स भी होंगे ना, किसी का वाइफ होगा, का बच्चा होगा। सही बात। अच्छा, ओह, दैट्स द रीजन व्हाई दे अच्छा हाँ, दिस इन प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि कुछ अगर इधर-उधर से बच गया तो मिल जाता है इंडियंस को, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियंस का है और किसी का नहीं है, चाइना का भी नहीं। चाइना का है थोड़ा-सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। चाइना का 4 साल, 5 साल लग जाता है, बाकी का 1 दिन का भी वेटिंग पीरियड नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो सबका बराबर है। लेकिन वेटिंग पीरियड कब शुरू होगा, तो बाकी कंट्री का दुनिया भर में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। चाइना का 4 साल, 5 साल है, और इंडिया का है जो इतना 150 साल वाला है। माय गॉड। उसमें मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ वो EB2 का है, जो मास्टर्स वालों का है। EB1 और EB1 में थोड़ा-सा कम है, उसमें 5 साल 10 साल में हो जाता है, EB1 में। वो और EB1 में 3 कैटेगरी है। अब EB1 में पहले बहुत सारे इंडियंस आते थे, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, स्क्रूटनी बढ़ गई है। उसमें 3 कैटेगरी है। एक है कि EB1A तब इंसान खुद ही करता है। EB1B जो प्रोफेसर्स का होता है, यूनिवर्सिटी करती है, और EB1C है जो कंपनी करती है, जो मल्टीनेशनल्स का है। उनका थोड़ा-सा हालत ठीक है, उनका 5-10 साल में हो जाएगा। अच्छा, उनका 10 साल का वेट। well, this is very unfair, isn't it? लाइफ तो कभी फेयर रहा नहीं है। इनफैक्ट आई विल पुट इट दिस वे, टू एक्सपेक्ट लाइफ व्हाट टू बी फेयर इज अनफेयर। Yeah, that's a good question. हाँ, दुनिया में फेयरनेस तो कभी नहीं रही है, ना होगी। कैसे फेयरनेस एक्सपेक्ट? जो आप एक इंसान के लिए फेयर लगेगा, दूसरे के लिए अनफेयर हो जाएगा ना। सही बात। अब ये 7% कोटा अगर हटा दिया तो इंडियंस को ज्यादा मिलेगा, तो बाकी कंट्री का कम हो जाएगा ना, तो बाकी सारी कंट्री लॉबी करते हैं कि नहीं होना चाहिए। हम्म। हम्म, और ओह, बाकी कंट्री का छोड़िए, इंडियंस भी लॉबी करते हैं कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इंडियंस, मेरा भाई मेरी बहन यहाँ सिटीजन है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप है उनका, जो है वो लोग कहते हैं कि हम लोग आए थे तो हम लोगों ने इनकी नौकरी ले गए, अब इंडियंस आएंगे तो वो हमारे बच्चों की नौकरी खा जाएंगे। तो वो लोग भी इसके अगेंस्ट है। वो तो ट्रेन वाला मेंटेलिटी नहीं होता है कि जो आदमी अंदर घुस जाता है, हाँ पहले तो अंदर घुसने के लिए बहुत मारपीट करता है, फिर जब अंदर हाँ घुस जाता है तो फिर डोर को बंद कर देता है। हाँ, तो ये पिकुलर प्रॉब्लम्स ना हमारे अंदर ज्यादा है। मतलब कि हम हिस्ट्री को भी उठा के देख ले तो अंग्रेज के जमाने में भी कुछ लोग तो इंडियन ही थे ना, जो फौज में गए थे, किए थे, जो भी मजबूरी है। मैंने एक वीडियो भी बनाया इन लोग के ऊपर। जो भी मजबूरी हो, लोगों ने किया ना। वो तो हजारों में थे, उनकी पॉपुलेशन 1.5-2 लाख से ज्यादा तो कभी नहीं हुई, लेकिन इतनी बड़ी हम्म। पॉपुलेशन को सप्रेस करने के लिए तो सारे इंडियंस ही थे। हम्म। उनके कैबिनेट में भी बहुत सारे इंडियंस थे। अब देखो, जालियांवाला बाग को भी लोगों ने जस्टिफाई किया था, वो इंडियंस ने काफी जस्टिफाई किया था। लोगों ने गवाही भी इंडियंस के खिलाफ दिया था, जो भी उनका जो सिस्टम था। तो हर स्टेज पे आपको इंडियंस दिखेंगे इस तरह। तो जब तक हम्म। इंसान सोचेगा कि मेरा भला हो जाए, तब तक तो ऐसे ही होगा ना। ये जो अफगानिस्तान में जो हिंदू थे, या सिंध, अब लाहौर या इस्लामाबाद में जो हिंदू थे, पहले लालपुर वगैरह कहा जाता था, उन्होंने थोड़ी कभी सोचा था कि हाँ, सब सोचते पैसे कमा लो, पैसे कमा लो। तो पैसे कमाने वाले ही मार खाते हैं। आप हिस्ट्री अगर देखेंगे, तो हम्म। जब चंगेज खान, मैं शायद पहले भी शायद कहा था, पता नहीं, अगर रिपीट कर रहा हूँ तो बस याद बता दीजिएगा। चंगेज खान जब बगदाद गया था और उसने कैप्चर कर लिया था, तो मारता ला लोगों का लाश का ढेर लगा दिया, लेकिन लोग अल्लाह 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 ही करते रहे। उनका था कि हम मर जाए, हमारा धर्म रहना चाहिए। उसके बाद चंगेज खान के बच्चों को बोला, भाई अगर यहाँ राज करना है तो तुम्हें मंत्री मुसलमान रखने पड़ेंगे। जब मंत्री मुसलमान हो गए तो फिर बोला, भाई तुम्हें अगर राज करना है, तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। तो चंगेज खान का जो पोता वगैरह जो वो मुसलमान बन गए।
तो उनमें ये है ही नहीं कि हमें क्या होगा, उनमें है कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो जिहाद, क्रूसेड ये लोग अपने लिए तो कर ही नहीं रहे थे, ये तो धर्म के लिए कर रहे थे। और इसलिए यहाँ आज के डेट में मुस्लिम का पॉपुलेशन भी उतना ही है, लेकिन वोट बैंक है, सभी एक साथ काम करते हैं। यहाँ तक कि सिख भी एक साथ काम करते हैं, उनका पॉपुलेशन कम है तो भी वो करते हैं। लेकिन हिंदू जो है वो कहते हैं यार हम वो नहीं करते, वो प्रेशर ग्रुप बनते ही नहीं है, वो अपना फायदा देखते हैं। वो जब प्रेशर ग्रुप ही नहीं है, जब ग्रुप ही नहीं है तो प्रेशर कहां से डालेंगे, इसलिए कोई इनको वैल्यू भी नहीं करता है। हम्म, डेमोक्रेसी में भी आपको एज ए ग्रुप काम करना रहता है ना। आप सही एज ए बात। ग्रुप नहीं काम करेंगे, आप प्रेशर नहीं डालेंगे, तो आपकी वैल्यू भी कुछ भी नहीं होगा। आप इंडिपेंडेंट हैं, लूज ग्रेप्स की तरह। हम्म, इसकी कीमत आप देख लीजिए, गुच्छे में का कीमत देखिए, और हर कोई गुच्छा ही उठाता है, नीचे का तो बटोरता नहीं है। जहां से टूटता है उसको ऊपर वाला लेयर खराब होने लग जाता है। और मैं तो इनको कितने बार कहता हूँ, बाकी जो इंडियंस हैं उनको तो भगा देंगे, जिनको मारेंगे या कुछ जेनोसाइड होगा, यहाँ पे हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज को जेल में डाल दिया था, जो यूएस सिटीजन जापानीज थे। ओ, ठीक है, हाँ। तो ऐसा अगर कुछ होगा एंटी वो, तो सभी को डाल देंगे। जब डालेंगे तो उनको डालेंगे जो यूएस सिटीजन हैं, जो आप इसके डेट में कह रहे हैं कि हमें क्या होगा। तो नहीं है उनको तो पहले ही निकाल देंगे ना, उनको थोड़ा ना कुछ करेंगे। this social dynamics is very interesting actually, नहीं? USA हाँ में। हाँ, नहीं दुनिया भर में है। मैंने कहा ना, जो तुच्छ प्राणी होते हैं वो पैसे की बात करते हैं। ठीक है, जहां से भी ज्यूस पैसे ही कमा रहे थे ना, जब उनको भगाया गया वहां से, तो जो तुच्छ प्राणी होते हैं पैसे की बात करते हैं। और जहां यूएस में जो अभी हो रहा है कि भाई सभी को निकाल दो, बाकी हम सब कुछ देख लेंगे, इस मोर ऑफ ए कल्चरल वॉर। कंट्री का क्या पैसा तो फिर से आ जाएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गोरे लोग ही चाहिए। विवेक रामास्वामी यहाँ पे इलेक्शन खड़ा हो रहा है, ही इज द फर्स्ट हिंदू जो गवर्नर के लिए खड़ा हो रहा है। इससे पहले इंडियंस खड़े हुए थे, लेकिन सब क्रिश्चियन बन गए थे। लोगों ने बोला है कि जो वो रिपब्लिकन पार्टी का है, रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स कह रहे हैं हम डेमोक्रेट्स को वोट कर देंगे, ठीक है, लेकिन हिंदू को नहीं वोट। अच्छा, हाँ, ओहायो जो कि रेड स्टेट है, जहां रिपब्लिकन जीतता है, ट्रंप ने बोला विवेक रामास्वामी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। वहां के रिपब्लिकन का ये देखिए, जो ट्रंप के लिए कुछ करने को रेडी है, वो कह रहा है हम डेमोक्रेट्स को वोट कर देंगे, जबकि यहाँ पे दुश्मनी काफी ज्यादा है, लेकिन एक हिंदू को वोट नहीं कर। आपका एक प्यू रिसर्च का देख लीजिए, प्यू रिसर्च करती है यहाँ पे, उन्होंने बोला है, उनसे पूछा गया किसको आप फेवर करोगे, इलीगल मैक्सिकन या लीगल इंडियंस। उन्होंने बोला इलीगल मैक्सिकन, वो कम से कम क्रिश्चियन तो है। अच्छा, ऐसे। ये यहाँ के जनरल सेंटिमेंट्स है। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये लोग तो, ये चीज सब तो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ नहीं पाते हैं, ये सब चीज। ये तो हम नहीं आता है। हाँ हाँ, उतना नहीं आता होगा इसका, लेकिन इन लोग को हाईलाइट इंडियन मीडिया भी काफी करती है, क्योंकि इंडिया किससे रिलेटेड आता है ना जब भी ये सब रिसर्च। अच्छा, तो आगे अब क्या होने वाला है? लेट अस से आफ्टर ट्रम्प व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ट्रम्प जो है वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, ही इज द सिम्पटम ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करता था, ट्रम्प प्रॉब्लम था, उसीलिए ट्रम्प बना ना। ऐसे लोग सोचते हैं यहाँ पे, तभी ना ट्रम्प को सपोर्ट किया। सही बात, दैट इज ट्रू। यस। ये थोड़ी ना कि ट्रम्प आके चीजों को बदल दिया है। चीजें लोग ऐसे सोचते थे, ट्रम्प उस तरह बोलने लग गया, लोगों को लगा कि हाँ यही हमारी बात बोलता है, बाकी लोग तो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ये मुफट की तरह बोलता है, तो लोग उसी के पीछे रैली करते हैं जो उनके बिलीफ सिस्टम से अलाइन होता है। तो अभी जो आता है कि आई एम रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग ये वैक्सीन के ऊपर। अच्छा, ट्रम्प गिव्स एन ऑर्डर ऑन द वैक्सीन, बट व्हाट अबाउट द डॉक्टर्स एंड ऑल द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड ऑल दैट? हाउ दे कीप क्वाइट अबाउट दीज थिंग्स? Why Trump is considered to be an expert on vaccines?
ऐसा है, पहला चीज़ तो मैं आपको शायद पहले भी कह रहा था कि ओवर अ पीरियड टाइम साइंस ने बहुत लोगों को बहुत झूठ बोला है। ओवर अ पे लोगों का भरोसा साइंस से हट गया है। तो ट्रम्प ने कुछ मैंने कहा ना, ट्रम्प वही बोल सकता है जो लोग सोचते हैं कि सही है। लोगों ने जब उसको वोट किया तो ये कह के वोट किया कि उसने बोला मैं वैक्सीन बंद कर दूँगा। लोगों ने उसको वोट किया कि हाँ, तुम बंद कराना, हम तुम्हें वोट करेंगे। तो वो कर रहा है जो उसने कहा। जिसको उसने हेल्थ सेक्रेटरी बनाया है या मिनिस्टर को सेक्रेटरी कहते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी जे हम्म, जेएफके को, वो हम्म। सॉरी क्या नाम है, कौन-सा केनेडी है वो? रॉबर्ट वो कैनेडी है शायद। रॉबर्ट केनेडी, हाँ, वो खुद ही हाँ। वैक्सीन के खिलाफ था। उसने सारे बंदे को हटा दिया जो कि उसमें डिसीजन लेते हैं, जो वैक्सीन के फेवर में थे। उनको लेके आया जो वैक्सीन के खिलाफ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बात ये नहीं कि सही गलत क्या है, बात ये है कि ओवर अ पीरियड टाइम लोगों का भरोसा हटता चला जाता है। जब भरोसा हट जाता है, तभी दुनिया भर में रिवॉल्यूशन और वो सब कुछ होती है। रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन, लोगों को लगता है कि जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है, उनको बेवकूफ बना रही है। हम्म। इसमें ना ये जो आप कह रहे हैं लीगल इलीगल वाला, पलकी शर्मा को जानते हैं आप? पलकी शर्मा पलकी शर्मा वीडियो ना? बनाती, हाँ, हाँ, नहीं, हम नहीं जानते हैं। हाँ, पलकी शर्मा पहले उसमें भी थी, संकेत उपाध्याय की बीवी थी। एनडीटीवी वगैरह में थी, फिर उसके बाद वो अच्छा, हाँ, 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 फर्स्ट हाँ, राइट, 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 हम। आजकल हाँ, उसका भी एक वीडियो है जिसमें 40,000 लोगों को सर्वे किया गया था बिटवीन लीगल इंडियंस एंड इलीगल मैक्सिकन्स। हम्म। तो उस हाँ, तो उसमें उसने भी वीडियो बना के दिखाया है इंडिया में। हाँ, आपका बात सही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में उतना नहीं आया है जितना कि ये दूसरे लोग का आया है। ना, हम जो कह रहे हैं कि वैक्सीन, सपोज ट्रम्प हाँ, से वैक्सीन इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, बट हुँ, व्हाट द डॉक्टर्स आर सेइंग, डॉक्टर्स तो इतने सारे हैं, एंड द इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी एंड द एकेडमिक कम्युनिटी, they have to raise their voice, isn't it? हाँ, तो ऐसा है ना, इस रेस द वॉइस का कहानी ऐसा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, दूसरे साइड भी है ना जो कि इसके खिलाफ हैं। और आपका कोर्ट कोर्ट में भी अब ऐसा है कि जब कोविड हुआ हम्म, था तो उन्होंने बोला था वैक्सीन मैंडेटरी है। कोर्ट ने बोला, किसने बोला मैंडेटरी है? तुम कैसे मैंडेटरी कर सकते हो कोई चीज़? कोर्ट में बोला गया था कि कोविड हो गया है, लोग चर्च में नहीं जा सकते क्योंकि वैक्सीन नहीं लिया। उसने बोला, तुम होते कौन हो बोलने वाले चर्च में जाए ना जाए? तो यहाँ कोर्ट के भी जजमेंट उस तरह है। तो वहाँ पे एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इस पे भी बहस करती है कि मर्ज़ी है उसकी, ले ना ले। तुम कैसे थोप सकते हो किसी पे? और लोगों का भी ये है कि कोविड के समय भी यहाँ बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते थे। यहाँ कंपल्सरी करने की कोशिश किया, कोर्ट ने बोला कंपल्सरी नहीं कर सकते तुम। हम्म, हुँ। तो कोई भी ऑर्डर सोसाइटी एक्सेप्ट तभी करती है जब सोसाइटी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होती है। सोसाइटी में एक सेक्शन होता है जो कहता है कि ये सही है। आज के डेट में उसके पास जो डॉक्टर हैं, वो जो पैनल में है, 16-17 लोग की पैनल होती है जो वैक्सीन के बारे में डिसाइड करता है, तो उसमें ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। बात इसका नहीं है कि क्या सही है गलत है, बात इसका है कि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है डॉक्टर्स पे, साइंटिस्ट पे। लोगों को लगता है कि ये सबको बेवकूफ बना रहा है, तो दूसरे तरफ के लोग पुश बैक करने लग जाते हैं। हम्म। तो वही है। ल लो एक मेरा क्लासमेट भी था, कोर्समेट भी था। हम्म। वो बिल क्लिंटन फाउंडेशन एक में काम करता है। बोलता है ये लोग तो डिसाइड करते हैं, वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वैक्सीन आता तब है जब बीमारी फैल जाती है। और जब तक वैक्सीन रेडी होता है, तब तक बीमारी खत्म हो जाती है। तो उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है। इंक्लूडिंग कोविड के समय में भी इसने करोड़ों वायला वैक्सीन फेंका था, ये क्या नाम है अपना पूना वाला जो है, जो हम्म। आधार पूना वाला जो है, ठीक है? हम्म। फिर इतना ज़्यादा डिमांड होने के बाद भी प्रोडक्शन इतना होता है। तो ये लोग तो पूरा रैकेट ऐसे चलाते हैं, अब कितना चलाते हैं मालूम नहीं, लेकिन परसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं बिल गेट्स वैक्सीन में इन्वॉल्व्ड है, बिल गेट्स वैक्सीन के लिए सपोर्ट करता है। बिल गेट्स जो है उस पहले ही कह रहा था ऐसा कुछ होगा, फिर हो गया। तो लोग बिल गेट्स को तो काफ़ी टारगेट करते हैं इस पे, आप देखेंगे हर जगह पे, कि उसको कैसे पता था? तो लोगों का यूएस में मानना है कि ये जो पैसे वाले हैं, ये लोग वैक्सीन बीमारी का रैकेट करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए वैक्सीन के थ्रू। ये यहाँ के लोगों का सोच है। मैं मैं और अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ।
कोविड हुआ था तो मैंने भी वैक्सीन लिया था, जब बोला गया था, जब मौका था, जब एज की आया आया था, जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी तब लिया था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी यहाँ पे वैक्सीन को के ऊपर वो करने की कोशिश किया कि मैंडेटरी करने का, तो डिबेट हो रहा था, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग दूसरे साइड से भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है हम्म, वही लोग को अलाउड है ट्रैवल करने का, जो वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको तो तुमने ऑर्केस्ट्राइज कर दिया है। उस समय तो बाइडेन का रूल था, तुम चर्च नहीं जाओगे, रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे, बस में नहीं जाओगे, ट्रेन में नहीं जाओगे, सब जगह पे। तो बोल रहा है इतनी सारी जो बीमारी फैल रही है वो उनसे फैल रही है जो वैक्सीन लेके घूम रहे हैं, उनसे नहीं फैल रही जो वैक्सीन नहीं ले रखे। ठीक है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि भाई आरटीपीसीआर टेस्ट जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था कि भाई इसके बिना आदमी ट्रैवल नहीं कर सकता है। बोलता है कि अगर किसी इंसान को तुम देखो और अंदाजा लगाओ कि ये बंदा को कोविड है या नहीं है, देयर आर 50% चांस यू आर राइट, 50% चांस यू आर रॉन्ग। और आरटीपीसीआर टेस्ट में वो 50% का प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है 65%, बस 65% ही होता है, 35% फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव निकलते हैं। और ये तो इंडियन चैनल पे इंडियन डॉक्टर्स आके बोल गया। तो आप इतना नौटंकी करते हो, इतना कुछ करते हो, 15% बोलता उतना तो तुम प्रोबेबिलिटी से भी इंसान सही हो सकता है। तो लोगों का यहाँ मानना है कि बहुत नौटंकी करते हो तुम just to make money, and survival of rest of the people is become miserable because of ये जो loss of trust है उसके कारण ये ट्रम्प ऐसा कर पा रहा है। और डॉक्टर्स इसमें विलन ही समझा जाते हैं, तो डॉक्टर पुष्पा क्या करेंगे? पब्लिक कहती है कि डॉक्टर भी उसमें मिला हुआ है, डॉक्टर भी पैसा खा रहा है, और बहुत सारे रैकेट निकलते भी हैं जहां पे डॉक्टर भी फंसते हैं गलत काम करते हुए। very, we have to educate our children so that they manage to understand these things. Very काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हाँ, आप ये साइंस का इश्यू नहीं है, ये ट्रस्ट और सोसाइटी का इश्यू है, सोशल इश्यूज है। हम्म, लोगों ने जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, इन्होंने रादर देन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द पीपल कि क्या सही है क्या गलत है, दे हैव ट्राइड टू रैम थ्रू दोस पीपल कि जो मुझे पता है वही एक ट्रुथ है, जो मुझे नहीं पता है वो ट्रुथ हो ही नहीं सकता। हम्म, रादर देन सेइंग ट्रुथ से कि लेट मी लिसन टू योर पार्ट ऑफ द ट्रुथ एंड लेट मी ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि तुम बोल रहे हो उसमें डज इट मेक सेंस। मैं लोगों को बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ अराउंड 13th सेंचुरी में, और यहाँ पे गोरे को गोरे का एग्जांपल देता हूँ। 13th सेंचुरी के आसपास वाइकिंग्स का वो था, क्या बोलते हैं वो लोग, कनाडा आए थे, लेकिन 13th सेंचुरी के आसपास लिटिल आइस एज कहते हैं, थोड़ा सा आइस एज, ठंडी बढ़ गई थी तो नॉर्वे में रहना मुश्किल हो गया था, तो नीचे आ गए। तो वाइकिंग्स लुटेरे थे, समुद्री उससे लूटते थे, सब जगह जाके लूटते थे, वही सब जाके बसे हैं आपका ये जो है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इन सब जगह पे। और कनाडा सनरा भी आए थे, लेकिन उनके बोट छोटे थे तो कॉलोनाइज नहीं कर पाए वापस। जो लुटेरे थे तो उस सोसाइटी में मर्ज होना चाहते थे, तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और जो सोसाइटी करते थे उन्हीं की तरह करने लगे, ताकि किसी को ना पता लगे वो लोग वाइकिंग्स हैं और उनको मार न दे। पूरे यूरोप में रिकेट की बीमारी होती थी कि सनलाइट नहीं होती थी, वाइकिंग्स को नहीं होती थी क्योंकि वो लोग फिश ऑयल पीते थे। उनको ये नहीं पता नहीं था कि उसका इफेक्ट क्या है, लेकिन उनको पता था फिश ऑयल पीने से वो नहीं होता है, मतलब कि रिकेट नहीं होता है। उसके 400-500 साल बाद साइंटिफिक कम्युनिटी को पता लगा कि फिश ऑयल से रिकेट नहीं हो, मतलब कि रिकेट से बच सकते। लेकिन 500 साल तक ये पूरी चीज खत्म हो गई, क्योंकि एक तो साइंस का ये भी रहता है कि तुम रेप्लिकेट कर सकते हो, तुम रीजन आउट कर सकते हो, जो कि पुराने जमाने में वो पॉसिबल नहीं था। पुराने जमाने में कॉज एंड इफेक्ट पता था, लेकिन हाउ इट इज इफेक्टिव वो नहीं पता था। फिश ऑयल पीने से रिकेट नहीं होगा, लेकिन फिश ऑयल में ऐसा क्या है जो रिकेट नहीं होगा वो नहीं पता। तो सोसाइटी एक्सपेरिमेंट करती थी, इससे ये फायदा होता है, दैट्स इट। तो बहुत सारी चीजें जो है, अगर लोगों ने साइंस ओपन माइंड से रहती कि भाई उनको नहीं होता है और हमें होता है, तो वो क्या कर रहे हैं और फिश ऑयल का क्या इम्पैक्ट है, तो शायद 500 साल पहले पता लग गया होता उनको।
दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देता हूं मैं, प्लेग्रा करके एक बीमारी होती है और वो विटामिन B6 नाइसिन एमिकल या उसके कमी से होती है, B3 B6। वो जब इटालियंस यहाँ पे आए थे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में, तो उनको काफी होती थी। तो इटली गरीब देश था उस समय और यूएस पैसे वाला देश था उस समय, ग्रो कर रहा था। इन्होंने बोला सिंपल, विटामिन B3 की कमी है, विटामिन B3 ऐड करो, खिलाओ पिलाओ, हर फूड में डाल दो, ये सब कुछ आर्टिफिशियली डाल दो, हो जाएगा। अब ये बीमारी इटालियंस को नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा कि इसी जगह पे लोग ओबीस होने लगे। फिर गए वापस, तुम्हें क्यों नहीं हुआ? वो गरीब देश है, उनके पास तो था नहीं पैसा कि ये सब करें, लेकिन वो फर्मेंटेड फूड खाते थे और फर्मेंटेड फूड में वो सेम चीज जनरेट होता है जो है। तो लोगों को ये लगता है कि हम मोटे हो गए क्योंकि तुम्हारा बात मान लिया। कोलेस्ट्रॉल का भी यही प्रॉब्लम हुआ। इनके पास कोई 22 कंट्री का डेटा था, वो 7 कंट्री का डेटा यूज किया जो इनके साथ फिट हो रहा था और लोगों को बता दिया कोलेस्ट्रॉल खराब है। आज के डेट में कह रहे लो कोलेस्ट्रॉल के कारण डिमेंशिया का इतना प्रॉब्लम हो गया। तो लोगों ने भुगत रहे ना, इसमें भी तुमने धोखा दिया, इसमें भी धोखा दिया, इसमें धोखा दिया। तो आगे अभी कोविड के लिए भी लोग कह रहे हैं, पूरी फंडिंग कह रहे हैं कि यूएस ने किया था, तो फौजी वाला जो है, तो बोल रहा है कि हर बीमारी तुम करते हो, इलाज का पैसा तुम करते हो। यूएस में अगर दवा का दाम आज के डेट में मान लीजिए कोई दवा $5 का है, मैंने उसका $50 कर दिया कल, तो लीगली परमिटेड है। अच्छा मैं 50 क्या 500 भी कर दूं तो भी लीगली परमिटेड है। तो लोग इन सभी चीज को देख देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और जब आदमी का भरोसा उठ जाता है तो ये माने नहीं रखता क्या सही है क्या गलत है, हर चीज को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करना। So children, are you listening that how science works in our society? Aryan? Yes, sir. So अर्थ आप सुन रहे हैं साइंस कैसे काम करता है? यस सर। ओम प्रकाश जी नमस्कार। हेलो ओम प्रकाश जी। सर नमस्कार, सर नमस्कार। हाँ, तो आज सर, आपकी छुट्टी नहीं है आज इंडिपेंडेंस अब डे सर की? अब सर इतने संघर्ष से हम लोग आजाद हुए तो आज तो छुट्टी होनी ही चाहिए। सर मेन बात क्या है सर, मानवीय जो स्वभाव है ना वो संघर्ष वाला ही है। अब मेरा हित अगर होगा तो जरूर है, उसके अंदर किसी का अहित तो जरूर होगा सर। वो तो हमारा जो है ना संघर्ष का स्वभाव है, तो यहाँ पे डार्विन का सिद्धांत जरूर लागू होता है। इस पृथ्वी पे वही रह पाएगा जो संघर्ष है ना करता रहेगा। अभी अब बात रही, संघर्ष में जीतता भी रहेगा। हाँ, जो सस्टेन कर पाएगा उसको, जिसका विल पावर ज्यादा रहेगा संघर्ष में भी, उसका विल पावर, जिसका विल पावर ज्यादा रहेगा स्ट्रॉन्ग, वही उसको जीत पाएगा, चाहे वो गलत के लिए भी हो उसका विल पावर या सामूहिक मानव की उन्नति के लिए हो। दोनों में तो वो तो चाहिए। दूसरी बात हुआ इनका जो बीमारी है सर, जो डॉक्टर लोग है ना जानते हुए भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर वो बोलते हैं ना तो आईएमए उनका लाइसेंस है ना कैंसिल है ना कर देगा, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल है ना कितने कर देगा। अब जिसने इतने मेहनत से नीट पास किया है, डॉक्टरी किया 5 साल, बहुत मेहनत से डॉक्टर बना है, उसका अगर कैंसिल होता है लाइसेंस, फिर वो जीवन में क्या कर पाएगा? वो मानव के लिए लड़ रहा था, अब उसका इनकम सोर्स क्या होगा? तो बहुत सारे लोग हैं जो इन सब संघर्षों से डर जाते हैं। 90% तो क्योंकि लिए ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है ना थोड़ा डरता ही है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही अलग स्वभाव का होता है, तो वो लोग नहीं बोल पाएंगे। वैक्सीन में जो हुआ था ये भी एक तरह का इमरजेंसी है, 1975 में जो इमरजेंसी हुआ ना वैसे ही हुआ। आप है ना स्कूल नहीं जा सकते, आप कंपनी नहीं जा सकते। मुझे वैक्सीन लेना नहीं था, मुझको वाकई में मुझे नहीं लेना था, लेकिन कंपनी वाले ने बिल्कुल ही वो किया कि जब तक वैक्सीन नहीं होगा तो आप कंपनी नहीं आ सकते, और नहीं जाएंगे तो चल ही बंद हो जाएगी। चलो भाई डाल दो हमको वैक्सीन, अब तो क्या कर सकते, जिएंगे जो भी होगा। सर वैक्सीन का मेरे पास मेडिकल का दुकान था बहुत पहले, हम लोग है ना जयपुर से वैक्सीन खरीदते थे, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर, वहाँ हम लोग डिलीवरी देते थे। रात को 3 मतलब 7 बजे शाम को मैंने खरीदा, मैंने अपने बैग रखा, उसको रखने के बाद के अंदर मैं 150 किलोमीटर अपने सवाई माधोपुर आया, उसको अपनी दुकान पे रखा जहाँ पे कोई फ्रीजर नहीं है, दुकान में रखा। नेक्स्ट डे मैंने उसको 11 बजे जाके उस दुकान वालों को दिया,
फिर उसने फ्रीजर में रखा ही नहीं रखा, कोई है ना गारंटी नहीं है। और जबकि वैक्सीन को -4 डिग्री में रखना जरूरी होता है। तो ये तो मेरा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही कितना टेक केयर करके लेते होंगे लोग। तो ये वैक्सीन का पूरा डिलीवरी जो है पूरा रॉकेट है, साइंस है। इसका कुछ भी इफेक्ट होता है नहीं होता है नहीं पता, होता है सर। लेकिन इतना परसेंटेज पूरा ही क्योर आपको करके देगा। आपने चिकन पॉक्स का वैक्सीन ले लिया, जरूरी नहीं है कि आपको नहीं होगा, होता भी है। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। अब बात रहा यूरोपियन कंट्री का, तो यूरोपियन कंट्री जब भी अमेरिका पहुंचे ये लोग, तो रेड इंडियन को किस तरह से इन्होंने वहां पे भगाया है और उनके साथ में क्या क्या जुल्म किए हैं, वो तो वहीं के लोग कितने जानते हैं इस चीज को। इन्हें चिकन पॉक्स की बीमारी लेके गए, इनका जो इम्यूनिटी था पावर तो पहले से था, ठीक था। वो लोग गए वहां बीमारी फैलाया। जो लोग बोलते थे हमारी बीमारी ठीक करो, बस ठीक करेंगे, पहले तुम तुम्हारी जमीन यहाँ से खाली करो या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। वही चीज उन्होंने अमेरिका में किया, वही चीज ऑस्ट्रेलिया में किया इन लोगों ने। तो ये चीज तो उच्च काल से है। तो ये चीज जो है ना, ये लोग इस चीज को है ना बीमारी फैला करके वहां की चीजों को अपने हिसाब से डील करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बहुत पहले से है इन लोगों का। और कोरोना भी वही एक पार्ट है। तो यही है, इसके साथ में जीना पड़ेगा। इसके संघर्ष करेंगे तो सर संघर्ष का रिजल्ट है ना 10% ही, मैक्सिमम 10% ही आएगा। चीजें सुधारने जाएंगे ना 10% ही आएगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन है ना इतना हावी है ना। रसिया भी झुक गया, अभी तो क्या है, रसिया भी गया उस तरफ। अब रसिया कहाँ, उसका बापपति या समाजवादी, समाजवाद का अवधारणा सब कुछ धूमिल हो चुका उसका भी। नहीं, देखिए एक चीज है ओम प्रकाश जी कि देखिए वैक्सीन से लाभ तो होता है। पहले इंडिया में इतना स्मॉल पॉक्स होता था, जी तो होता था। अब देखिए जी हम जानते हैं मेरे गांव में बिहार में जो है तो जी कितने लोगों को पहले पोलियो होता था। जी और जी जी स्मॉल करेक्ट। पॉक्स तो मैंने समझिए हम्म, अब देखिए अब किसी को भी हम नहीं देखते हैं अब तो जी जी करेक्ट स्मॉल करेक्ट पॉक्स। करेक्ट। जी। इनफैक्ट पोलियो से तो मेरा ही एक भाई था जो उसको पोलियो हो गया। ही वाज हम्म ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड हम्म उसका जीवन खराब हो गया उसका पोलियो के हम्म कारण। हम्म तो हम्म वैक्सीन से लाभ तो होता है, हम्म पर ये जो अमेरिका में आजकल आर्गुमेंट चल रहा है कि वही मैं पूछ रहा था उदय जी से कि दिस पॉलिटिशियंस आर कॉलिंग द शॉट्स कि वैक्सीन ठीक है कि नहीं है। हम्म इट शुड बी द डॉक्टर्स कम्युनिटी व्हिच शुड टेल, हम्म दे मस्ट टेल अस द ट्रूथ कि भाई इससे नहीं होता है कि होता है। हम्म तो वही वो बता रहे थे कितना कॉम्प्लिकेशंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, लॉट ऑफ पैसा कमाने का धंधा, वो सब कुछ चलता है वहाँ पर। उदय जी बता रहे थे, हमने ये सब आप न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ेंगे, उदय जी जो बताए हैं। जी 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 नहीं सर, अमेरिका में भी अभी हुआ है ना, एक कोई था मंत्री सेनेटरी था, तो उसने ना मुस्लिमों के सपोर्ट में बहुत कुछ वर्क किया उसने वहां पे। अभी वहां पे पॉपुलेशन इतना हो गया है कि उसके जो जितने भी सेनेटर में नीचे हैं सभी मुस्लिम हो गए हैं। तो अब उन्होंने ना बोला कि अब यहाँ पे ना मस्जिद भी होना चाहिए और उर्दू में भी होना चाहिए। और इस बार वो हार भी गई है। फिर उसने ही जाके ना ट्रम्प को कंप्लेन किया है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज के कारण ये इम्पैक्ट आ रहा है, इसको इसके ऊपर वर्क है ना करना पड़ेगा। जो सेकुलर जो लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वहां पे अमेरिका में भी घटनाएं है ना घट रही है सब चीजें। किसी का कोई नाम में भूल गया उसका, लेडीज ही है कोई तो। वो पहले जो माइग्रेट लोग जो आ रहे थे बाहर से, तो उनके उनके सपोर्ट में थी वो। अभी वहां पे डेमोग्राफी बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो अच्छा, अर्थ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या No, क्वेश्चन I'm है? not asking questions, sir. Sir, या व्हाट sir, यस, can I leave now? ओके oh ओके। yes, now it's already 9:10, Thank you, sir. the time to go. Thank you, sir. So Those, says it was you actually, Aryan, the sum and substance of what Udayji is telling is that science, anywhere science develops, but then it gets mixed up with the population, social things, and many things, many things happen.
कैन यू इमेजिन जब कोपरनिकस के दिमाग में जब आया कि अरे ये तो अर्थ जो है सेंटर नहीं है, ये तो डर के मारे जो है ना किसी से डिस्कस नहीं करता था कि लोग उसको पागल समझेंगे। इनफैक्ट जब उसके दिमाग में आया तो उसने सोचा कि पहले पता लगाना चाहिए कि पहले के लोग बोले हैं कि नहीं बोले हैं कि अर्थ इज नॉट द सेंटर। तो पूरा पुराने किताब सबको खोजने लगा। वो इतना डर गया था क्योंकि ही वॉज सीइंग दैट अर्थ इज रियली नॉट द सेंटर, और सब उसको पढ़ाया जा रहा था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो खोज के निकाला कि 3-4 लोग ऐसे वहां पर भी जो पढ़े लिखे पुराने जमाने में 2000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, वो लोग भी डाउट किए थे कि शायद अर्थ सेंटर में नहीं है। तो उसको बहुत खुशी हुआ कि चलो कुछ लोग तो ऐसे भी थे। बट अपने जीवन काल में जो है ना ये पब्लिश नहीं कर पाया। यू विल बी सरप्राइज्ड। कोपरनिकस का किताब कहते हैं वेदर इट इज ट्रू और नॉट, ये उसके डेड बॉडी पर जो है उसका किताब रखा गया पहली बार। So science develops and has to develop because it is science which has made change in us, progress जो हम लोग इतना किए हैं। अब सर अचानक कोई रिसर्च पेपर ऐसा है जो कोरोना के अंदर जो वैक्सीन लगाया गया है वो इतना इफेक्टिव नहीं था और इससे कोई फायदा वाली बात नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च पेपर आ जाए तो क्या सरकार इसको बोल पाएगी? सरकार बोलेगी कि हमने अगर बोल दिया तो लोग है ना हमको चबा जाएंगे, तो सरकार थोड़ी ना बोलेगी ये सब चीजें। तो नहीं समाज देखिए, क्या है, समाज हमारा जो है ना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। एक चीज को पहले एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उस चीज उसके साथ ही जीना चाहता है। उसका कुछ मतलब कोई अपोज वाली थ्योरी आ जाती है तो समाज नहीं एक्सेप्ट करता है, और जो बोलता है समाज उसके खिलाफ रहना चालू करता है कि भाई पहले तो हम इसको एक्सेप्ट किए हैं, अभी तुम थ्योरी लेके आए तो मतलब वो भी जो तुम्हारा फिर सच होगा। और हम बोल तो बस ठीक है, पुराने क्या हुआ फिर अभी? समाज को जल्दी से एक्सेप्ट ना, हम समय के अनुरूप धीरे-धीरे छोटा-छोटा इनपुट आता रहता है, फिर उसको एक्सेप्ट तो न करता है। तो ये जो चेंज मैनेजमेंट में जो डॉक्यूमेंट जो चेंज होते हैं ना, तो पहले क्या उसका है ना, पहले कुछ-कुछ पॉइंट चेंज होते हैं, बाद में फिर उसका दूसरा ही अपडेट वर्जन आ जाता है, जो अभी पहले एक बी वर्जन के अपडेट होता है। सेम सॉफ्टवेयर में भी आता है, ऐसा ही आता है। सॉफ्टवेयर में बल्क में चेंज करने के लिए साल भर रहने लग जाते हैं कि भाई बहुत सारी क्वेरीज आ चुकी है, अब उसको अपग्रेड करके नया वर्जन होगा, अब इसका प्रोग्राम नंबर अब बी हो चुका है। तो सेम समाज का भी वही है, मुझे जो लगता है कि समाज का भी है ना एक्सेप्टेंस है ना, ऐसा ही जल्दी से समाज एक्सेप्ट है ना नहीं करती है। अभी सर आप भी हाँ, देखिए, आप भी देख रहे हैं अभी। हाँ, अभी एआई का उपयोग करना आपको भी थोड़ा-सा ईज़ीनेस नहीं लगता है और हमें भी कि नहीं लगता है, लेकिन अभी जो अभी नए जनरेशन के हैं उनको ना बढ़िया लगता है, वो शॉर्टकट निकालते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारा पुराना प्रैक्टिस फिर भूल जाओगे, तुम लिखना भूल जाओगे, तुम मतलब अपना माइंड के दिमाग को यूज़ करना भूल जाओगे। ज़्यादा एआई का उपयोग मत करो, अपना खुद का जो क्रिएटिविटी है उसको पहले उसको यूज़ में लो। एआई का बस उपयोग करो सपोर्ट के लिए। लेकिन अभी नया जनरेशन में पूरा-पूरा ही चीज़ ड्राफ्टिंग करके सीधा कॉपी पेस्ट करके मेल इन्हें कर देता है। हाँ, अगले कुछ साल में पता पड़ेगा कि एआई हम लोग के लिए लाभकारी है, पर एक एंगल से देखा जाए तो काफी लाभकारी है क्योंकि जितने भी रूटीन काम है अब आप मशीन पर छोड़ दीजिए, क्रिएटिव काम आप कीजिए। हुँ। तो देखिए पर ये तो आके तो रहेगा, ये तो ऐसा नहीं है। आके रहेगा सर, वो बात। हाँ, और हाँ, इस वो पर आके हमारा सेम सर ये जो आता है ना, जब मैनुअली पेन से जब लिख रहे थे लोग, तब ये प्रिंटर जो आया था तो उस टाइम ही लोगों ने ऐसे ही अपोज किया था कि ये हमारी जॉब है ना खा जाएगा, इसे क्यों लाना है जब हम लोग लिखने के लिए हैं। लेकिन प्रिंटर आया है, नए-नए जो लोग है ना लिखवा नहीं पा रहे थे, मैनुअल लिखवाने में खर्चा भी था उतना,
प्रिंटर से लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति जारी करना चालू कर दिया है। प्रिंटर के कारण ही रेवोल्यूशन आया है। देश देश में जो भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़े हैं तो प्रिंटर के कारण ही आया है। ज्यादा फिर चीजें प्रचार होना फिर ज्यादा चालू हो गया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया लोगों का। अभी सरकार भी सही बात। चेंज हुई है, सरकार भी चेंज हो जा रही है तत्काल में। अभी तो वही है, सोशल मीडिया ज्यादा हो गया है। पहले मीडिया बोलते हैं, मीडिया है ना पहले से मैनिपुलेट होता है सरकार के प्रति, लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया है। आप 36 जगह से चीजों को फैक्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए, आज इंडिपेंडेंस डे है तो हम लोग अब छुट्टी मनाते हैं। जी हाँ। जी जी। ओके उदय जी, ओके which you celebrate Independence Day there today. ओके ओके सर।